Yes, good morning all of you. Welcome to online classes of Gyan Public School. Today we will continue our chapter of EVS, that is chapter number 22, and chapter name is How to Save Fuel. So let me tell you what is fuel. So materials such as coal, gas, oil, wood, petrol, diesel, etc. that is burned to produce heat and power is called fuel. Okay. And why we need to save fuel? हमें fuel को save करने की need या requirement क्यों है? Because increase in the uses of fossil fuel is depleting their presence within the earth. Earth में उसका जो presence है fuels का वो क्या होता जा रहा है? धीरे-धीरे decrease होता जा रहा है. जो resource है वो कम होते जा रहे हैं. Okay, so we should save fuel for a better environment and for our future generation. Okay, so let's start. All the students of Bhiwadi school seems to be very happy while carrying their lunch boxes and water bottle. Bhiwadi school के जो student हैं वो अपने lunch box and जो water bottle है उन्हें carry करते हुए बहुत ही ज़्यादा happy दिखाई दे रहे थे, खुश दिखाई दे रहे थे. And why should they not be happy? और उन्हें खुश क्यों नहीं होना चाहिए? They are going for a visit to the Sariska Wildlife Sanctuary, which is around 125 kilometer away. वो लोग कहाँ जा रहे थे? क्यों खुश थे? Because वो सरिस्का वाइल्ड सेंचुरी विजिट करने के लिए जा रहे थे, जो कि यहाँ से 125 किलोमीटर दूर थी. The teachers took their attendance and the headmaster gave necessary instructions to the students. Teachers ने उनका attendance लिया and जो उनके headmaster थे, principal थे, उन्होंने उनको जो भी compulsory या necessary instructions थे वो सब उन्हें दिए students को. And then all of them started their journey by bus. और फिर उन सब ने अपनी journey जो है bus से start की. It was morning time. There were very less number of vehicles seen in the road. ये morning time था, सुबह का time था और वहाँ पर road पर उन्हें बहुत ही कम जो vehicle हैं वो दिखाई दे रहे थे. Somewhere the farmers could be seen carrying the fodder in the bullock cart and camel carts. कभी-कभी उन्हें कहीं पर किसी जगह पर farmers जो हैं वो अपनी बुलेट कार्ट में, बैलगाड़ी में या जो कैमल कार्ट है, ऊंट गाड़ी है, उसमें वो एनिमल्स का जो फॉडर है, फूड है जो एनिमल्स, फार्म एनिमल्स का, वो कैरी करते हुए, वो ले जाते हुए उन्हें दिख रहे थे. It took around 2 hours to reach Alwar. और उन्हें 2 घंटे लगे कहाँ पर? अलवर पहुंचने में. There was a big queue of the vehicles there. And वहाँ पर vehicles की बहुत ही बड़ी queue थी, लाइन लगी हुई थी. Everybody was getting restless due to the continuous noise of horn and due to the pollution caused by the smokes coming out of the vehicles. And vehicles से आने वाली जो smoke है उसकी वजह से, ओके, एंड जो कंटिन्यूसली हॉर्न की वहां पर नॉइज हो रही थी, शोर हो रहा था हॉर्न की वजह से, गाड़ियों के हॉर्न की वजह से, एंड जो व्हीकल से निकलने वाला स्मोक था कंटिन्यू आ रहा था एंड वो क्या कॉज कर रहा था? एयर पॉल्यूशन कर रहा था, पॉल्यूशन कॉज कर रहा था ना. उससे एवरीबॉडी जो था वो कैसा दिखाई दे रहा था? बहुत ही ज्यादा रेस्टलेस दिखाई दे रहे थे ना, वो बहुत ज्यादा सब के सब क्या हो चुके थे? परेशान हो चुके थे, बेचैन हो गए थे वो लोग. ठीक है, means they are uncomfortable. Okay, so a very few bicycle and cycle rickshaw were also seen there. और उन्हें वहां पर बहुत ही कम bicycle and जो ऑटो रिक्शा है या जो साइकिल रिक्शा है वो उन्हें वहां पर दिखाई दे रही थी. So rows of vehicles on the road. Now look at the figure and discuss the following point. First one is, which vehicles do you see in the figure? इस figure में, इस picture में आपको कौन-कौन से vehicle दिखाई दे रही हैं? So in this picture, bus, car, truck, auto, motorcycle, tempo, scooter, etc. are found in this figure. Clear? What type of fuel is used in the vehicles? Vehicles में किस तरह का fuel use किया जाता है? So petrol and diesel are used in the vehicle. Vehicles में petrol and जो diesel है वो use किया जाता है as a fuel. Next one is, which are the vehicles that do not require petrol as fuel? कौन से ऐसे vehicles हैं जिनको as a fuel petrol का requirement नहीं होता है? So battery operated rickshaw, cycle, horse cart, bullock cart, camel cart, etc. do not require petrol as fuel. Okay, ये जितने भी vehicles हैं like camel cart, bullock cart, horse cart, okay,
एंड बैटरी ऑपरेटेड रिक्शा, साइकिल्स, ओके, इनमें से किसी को भी फ्यूल की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर? Now think and answer the following. Which vehicles are there in your home? Okay, so there are car, motorcycle, scooter, etc. in our home. Now second is, which vehicle do your family member use to go out to work? आपके family member जब work पर जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो वो कौन सा vehicle use करते हैं? So a family member use motorcycle and car to go to work. Okay. Next is, other than the vehicle in the figure, which are the other means of transport? Okay, इस figure में, इस picture में आपको जो vehicle दिखाई दे रहे हैं, उसके अलावा और कौन से means of transport हो सकते हैं? Okay, so other than the vehicles in the figure, the other means of transportation are aeroplane, rail, ship, helicopter, boat, horse cart, cycle, etc. Okay, these are the other means of transportation. Now the driver stopped the bus on seeing a petrol pump. There was a long queue of vehicle. Driver ने जो बस है वो पेट्रोल पंप पर स्टॉप कर दिया है. वहां पर व्हीकल की बहुत ही बड़ी एक लंबी क्या है, क्यू है, लाइन लगी हुई है. Ritu asked the driver, Kaka, has the petrol in the bus finished so soon? रितु ने पूछा कि काका, क्या जो बस का पेट्रोल है वो जल्दी ही फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा? The driver told her there was already a very less amount of diesel left in the bus and there is more consumption of fuel in a bus as compared to the other smaller vehicles. Okay, तो जब रितु ने क्वेश्चन पूछा तो बस ड्राइवर उन्हें क्या कह रहे हैं कि ऑलरेडी जो बस है उसमें बहुत ही कम अमाउंट में डीजल बचा है. ओके, एंड जो बस है उसमें जो डीजल का कंजप्शन है, जो डीजल का यूज होता है ना, वो दूसरे स्मॉलर जो व्हीकल्स होते हैं उनके कंपैरिजन में क्या होता है, ज्यादा होता है. ओके, मीन्स जितना बड़ा व्हीकल होता है उसमें जो यूज है डीजल या पेट्रोल का, ओके, वो उतना ही ज्यादा क्या होता है, यूज ज्यादा होता है उसका यूटिलाइजेशन. सो ड्राइवर ने उन्हें बताया कि बस इज देयर इज मोर कंजप्शन ऑफ फ्यूल इन अ बस एज कंपेयर टू द अदर स्मॉलर व्हीकल. स्मॉलर व्हीकल की बजाय इसमें डीजल का जो कंजप्शन है, जो यूज है, वो ज्यादा होता है. क्लियर? It's a picture of or a view of petrol pump. Now Akhil saw a slogan written on the petrol pump and asked the teacher, Sir, why it is written that the fuel reserve are limited, use them economically. ओके, तो फिर अखिल ने वहां पर पेट्रोल पंप पर एक स्लोगन लिखा हुआ देखा, एक बोर्ड पर एक स्लोगन लिखा हुआ था, तो उसने अपने टीचर से पूछा why it is written that, ये क्यों लिखा गया है कि the fuel reserves are limited, use them economically. जो फ्यूल के रिजर्व है, फ्यूल के जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है एंड इसे इकोनॉमिकली आपको यूज करना चाहिए. ओके, सो टीचर सेड, डियर, पेट्रोलियम इज फाउंड एट एक्सट्रीम डेप्थ beneath the ground. It was formed lakhs of years ago by the burial of plants and animals under the ground deep inside the earth and due to chemical reaction. Okay, तो जो सर है वो अपने स्टूडेंट को पेट्रोलियम का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे पेट्रोलियम बनता है, कहाँ ये फाउंड होता है, वो सारा डिटेल बता रहे हैं. दैट पेट्रोलियम इज फाउंड एट एक्सट्रीम डीप बीनीथ द ग्राउंड. ग्राउंड में बहुत ज्यादा डीप में, बहुत ज्यादा गहराई पर ग्राउंड के नीचे पेट्रोलियम जो है वो हमें मिलता है. ओके, एंड इट वाज फॉर्म्ड लैक्स ऑफ ईयर अगो by the burial of plants and animals under the ground. And पेट्रोलियम का जो फॉर्मेशन है वो कैसे होता है, इसमें लैक्स ऑफ ईयर का जो टाइमिंग है वो लगता है इसको फॉर्मेशन होने में, इसका बनने में. एंड जब प्लांट्स एंड जो एनिमल्स का लैक्स ऑफ ईयर्स अगो पहले क्या हुआ था, वो अंडरग्राउंड में ब्यूरियल हो गए थे, दब गए थे. ओके, एंड धीरे धीरे लैक्स ऑफ ईयर के बाद में जब वो अर्थ के डीप इनसाइड में जो ब्यूरियल हुए थे प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंड उनमें कुछ केमिकल रिएक्शन हुए, कुछ चेंजेस हुए, उसके बाद लैक्स ऑफ इयर्स के बाद में पेट्रोलियम का फॉर्मेशन हुआ. इट इज अ ब्लैक कलर थिक लिक्विड, ये एक ब्लैक कलर का थिक लिक्विड होता है. आफ्टर इट्स प्यूरिफिकेशन
In refineries, petrol, diesel, kerosene, wax, gasoline, charcoal, etc. are obtained. Okay, and जब पेट्रोलियम का प्यूरिफिकेशन होता है रिफाइनरीज में, okay, तो उसके बाद इसमें से धीरे धीरे जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं वो क्या किए जाते हैं, सेपरेट आउट किए जाते हैं. ओके, इसमें से हम कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो गेट कर सकते हैं पेट्रोलियम में से, दैट इज पेट्रोल, डीजल, kerosene, wax, वैसलीन, चारकोल एक्सेट्रा. ओके, ये सारे प्रोडक्ट जो हैं, जो भी रिफाइनरीज हैं जहां पर पेट्रोलियम को इंडस्ट्रीज इंस्टॉल की गई हैं, ठीक है, जहां पर कि पेट्रोलियम को क्या किया जाता है, रिफाइन किया जाता है, ओके, शुद्ध किया जाता है. तो इसमें से ये सारी चीजें जो हैं ये सेपरेट आउट की जाती हैं. Other than these, some other substances are also obtained that are used in the manufacture of alcohol, synthetic rubber, artificial fibers, and plastic, etc. There are under the earth in a very limited quantity. Okay, and जो पेट्रोल, डीजल की वैक्स, वैसलीन, ये सब थिंग्स इससे गेट की जाती है. उसके अलावा कुछ अदर सब्सटेंसेस भी हैं जो कि हम पेट्रोलियम के जो जब रिफाइनरीज में इसे प्योर किया जाता है तो उसे हम गेट करते हैं, जो कि हम अल्कोहल की मैन्युफैक्चरिंग में, सिंथेटिक रबर फॉर्मेशन में, आर्टिफिशियल फाइबर या जो प्लास्टिक की थिंग्स बनाई जाती है, प्लास्टिक बनाने में इसका इनका यूज किया जाता है. ओके, एंड अंडर द अर्थ ये जो पेट्रोलियम है वो बहुत ही एक लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है. ओके, एंड वैसे भी इसकी फॉर्मेशन में बनने में वी ऑल नो दैट थाउजेंड्स ऑफ ईयर और लैक्स ऑफ ईयर का टाइमिंग लगता है. ओके, तो ये लिमिटेड अमाउंट में है, दैट्स व्हाई हमें इसे बहुत ही इकोनॉमिकली, बहुत ही केयरफुली हमें इन रिसोर्सेज को यूज करना चाहिए. क्लियर?